So this is an orientation class for IES as well as Indian Economic Service, and I'm just explaining in this orientation class how this batch will proceed. That means how we will be conducting this new batch which is starting from today. So briefly I will explain first of all the content and the overall course part, and how we will be providing those lectures for the economics optional for IES, and then I will explaining briefly the course content and how we will be conducting the courses for Indian Economic Service including the test series. So briefly I will be explaining that, and then we will be starting with the particular topic. Now first of all, with respect to economics optional, now this economics optional paper for IES will have two paper. So paper 1 mainly include micro, macro, money, banking and finance, international economics and growth and development. So this paper 1 basically contains content of micro, macro, money, banking and finance, international economics and growth and development. I will show the content first of all for AS. Now this economics optional content, you can just जिस वेबसाइट पे यूपीएससी में लास्ट 20-25 ऐसे कोर्स का जो कंटेंट है वो वैसा ही है, और ऑल्दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चन काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, मतलब काफ़ी एडवांस लेवल पे पूछे जा रहे हैं, बट सिलेबस के अकॉर्डिंगली बेसिकली जो मेंशन टॉपिक होगा वो ये रहेगा. दैट मीन्स सिलेबस बेसिकली जो पार्ट हम देख रहे हैं वो एक सेक्शन हो गया, बट देर आर मेनी क्वेश्चंस आउटसाइड दैट मीन्स समथिंग नॉट रिटन इन द सिलेबस but it will be asked from you. So the objective of class will be basically to cover that outer boundary. So the content in micro, for example, includes a Marshallian and Wallacean approach of price determination. So you can just no need to write that in detail. Just you can write the first topic as the microeconomics, that is advanced microeconomics, which includes Marshallian and Wallacean approach of price determination. Alternative theory of distribution, it mentions Ricardo, Kaldor, Kaliski, but it will also include marginal productivity theory of distribution, bilateral monopoly, so there will be other topics as well. Then the third topic is market structure, which is a monopolistic, duopoly and oligopoly, but there will be question from perfect competition, there will be question from monopoly, there will be question from market failure. So the syllabus basically simply words oligopoly लिख रखा, but within oligopoly we have to cover in detail coalescive oligopoly, non-coalescive oligopoly, Bain's limit price theory. So there will be detail. Now how to judge कि इस कंटेंट का वेटेज क्या है और कितना टाइम हमें लगाना है, किस सोर्स से करना है, वो सारी चीज़ें बेसिकली क्लास के अंदर एक्सप्लेन की जाएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यू टेक मार्केट स्ट्रक्चर इन माइक्रो, तो कंटेंट आई विल स्पेसिफाई दैट यू हैव टू रीड इट फ्रॉम कुट्सानिस. तो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स कुट्सानिस की है, उसमें चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक चैप्टर नंबर 13 है बेन्स limit प्राइस थ्योरी का. वो कंटेंट बेसिकली आपको प्राइमरली वो कवर करना है. ऑब्वियसली विल बी कवरिंग दैट इन लेक्चर. आफ्टर दैट आपको अपने जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, उस टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपको मार्केट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन मिल जाएंगे. तो आई विल जस्ट शो इट कि मार्केट स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन जाए. फॉर एग्जांपल दिस इज ऑल क्वेश्चंस कलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट स्ट्रक्चर सेक्शन. तो मार्केट स्ट्रक्चर वाले सेक्शन से बेसिकली ये क्वेश्चन कलेक्टेड है. सो इन 2022 देयर वाज वन क्वेश्चन, explain briefly the Chamberlain concept of excess capacity in the monopolistic competition. Then there was one numerical based question, but that was easy, वो क्लास के अंदर कवर हो गया था. Then question number 23rd, do you think that Firmward would have a first mover advantage if it had gone for the price adjustment? Explain your answer. So you find 3 questions in 2021, in 2022, in 2021 there was 1 question, 2 question. In 2020 you find question number 6, question number 7, question number 8. In 19 it was question number 9, 10, 11, 12, 13. That means there were 5 parts or 6 parts. 18 के अंदर भी question 1, 2, 3, 4, 5.
क्वेश्चन को देखने का एक्चुअल में पर्पस ये होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है कि उस टॉपिक का कितना वेटेज है, ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं। तो अगर वो कोई सेक्शन ऐसा है जिससे 3 और 4 पार्ट्स एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, तो 3 और 4 पार्ट्स का मतलब कि मोर देन 50 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अराउंड 50-60 मार्क्स का क्वेश्चन ओनली फॉर मार्केट स्ट्रक्चर सेक्शन है। आई एम नॉट सेइंग फॉर माइक्रो, इट इज़ ओनली फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर। सिमिलरली वेलफेयर का क्वेश्चन होगा, बट वेलफेयर के क्वेश्चन विल फाइंड दैट देयर आर 1 और 2 मैक्सिमम। तो एक क्वेश्चन रेगुलरली रहेगा, बट देयर कैन बी 2 क्वेश्चन एज वेल। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी मे और मे नॉट, बट इफ देयर विल बी 1 क्वेश्चन। एंड मार्शलियन वालेशन अप्रोच वो ओकेजनली क्वेश्चन में है, बट ये 4 पार्ट है जो सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, बट देयर आर मेनी पार्ट्स विच आर नॉट मेंशन इन द सिलेबस। लाइक मार्केट फेलियर का सेक्शन हो गया, एक्सटर्नलिटी का क्वेश्चन है, पब्लिक गुड का क्वेश्चन है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन 2016 के अंदर रेगुलरली पूछे गए। ये क्वेश्चन नंबर 25 यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 26 यू कैन सी, व्हाट इज असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, हाउ इट कुड लीड टू एडवर्स सिलेक्शन। अब ये सारे टॉपिक सिलेबस में डायरेक्टली लिखे हुए नहीं है, बट वी हैव टू कवर इट बिकॉज वो क्वेश्चन आ गया। मतलब सिलेबस एक्चुअल में होता है कि जो पेपर में क्वेश्चन आ गया वो आपके सिलेबस का पार्ट हो गया अब, ठीक है, वो लिखा हो या ना लिखा हो, वी हैव टू कवर इट। सो seeing that question, by focusing on those question you have to write the daily answer, that means अपने कोर्स का कंटेंट फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी स्टार्ट विथ इन द मार्केट स्ट्रक्चर विद द परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन के जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेसिकली आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। अब लाइक क्वेश्चन ऑफ ये क्वेश्चन नंबर 9, under competition the cost function is given as this, derive the inverse supply curve and show how supply curve looks like, या what determine the degree of price discrimination। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये परफेक्ट मोनोपोली का क्वेश्चन है। तो ये इनिशियल लेक्चर के अंदर क्लास के अंदर मैं शो करता रहूँगा एवरी लेक्चर के अंदर कि बेस्ड अपॉन दिस लेक्चर यू कैन आंसर दिस 2 क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, एवरी डे मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग 2 आंसर। वो सेल्फ असेसमेंट की, नहीं कि उसको इवेलुएट करने वाली बात है, वो एक तरीके का आप कह सकते हो कि जो नोट लिखा हुआ है उसको आप लर्न कर रहे हो। बाय राइटिंग यू लर्न, और उसके 2-3 एडवांटेज है। 1, यू विल बी राइटिंग एक्यूरेट, 2, इट विल बी टेकिंग लेस टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू डोंट हैव टू थिंक। एंड अदर पार्ट इज दैट जो नोट्स में आपने लिख रखा है वो कोर बुक से लिखा हुआ, तो आपका जो स्टेटमेंट लैंग्वेज आएगा, सेंटेंस आएगा, वो भी टेक्निकल हो जाएगा। So and that will matter basically when you evaluate कि स्कोर ज़्यादा कैसे करना है। तो एक ही आइडिया, एक ही कंसेप्ट होता है जिसको अलग अलग स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं, बट सबके नंबर बराबर नहीं होते। फ़र्क एक्चुअल में होता है कि जो जिसने कोर बुक से पढ़ा है उसी के लैंग्वेज को उसने प्रैक्टिस कर रखा लिख करके, और वही वो आंसर में लिख देता है। सेकेंड, कुछ स्टूडेंट कोर बुक से पढ़ रहे हैं, दे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल, बट उन्होंने फिर अपने लैंग्वेज में उसको लिख दिया। तो जब आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल वर्ड्स, जो की वर्ड्स होता है, वो मिस हो जाता है, और वहाँ पे स्कोर थोड़ा मार्जिनली कम हो जाएगा। और मार्जिनल इंक्रीमेंट का बहुत जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पेपर के अंदर रिमेंबर इन पेपर 1 यू आर अटेम्प्टिंग 19 सब पार्ट्स। अगर हर क्वेश्चन के अंदर मान भी ले कि 0.5 का भी डिफरेंस होता है, तो भी अराउंड 10 मार्क्स का डिफरेंस हो जाता है। दोनों पेपर में अराउंड 20 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, तो 260 और 280 के स्कोर में ये फ़र्क हो जाएगा। तो अप्रोच बेसिकली ये रखना है कि आप जैसे जैसे क्लास को करते जाएंगे उसके साथ जो रिटन पार्ट होगा उसको आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार आपने डेली आंसर राइटिंग में लिखा, फिर जो टेस्ट होगा उसके अंदर लिखोगे, मेन से पहले दोबारा आप उसको लिखोगे, मतलब 2-3 बार अगर आपने लिख रखा है, देन इफ़ दोज क्वेश्चन विल कम, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो होता है पेपर के अंदर वो प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट होगा। आई कैन से मोर देन 50% क्वेश्चन वो PYQ से होता है। तो PYQ अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो मोर देन 50% क्वेश्चन एटलीस्ट आप एक्यूरेट लिखोगे, एंड दैट विल पुश द स्कोर। सो दिस कंटेंट बेसिकली इंक्लूड्स योर first section is micro, then second is advanced macroeconomics। इसमें क्लासिकल और केनेशियन लिखे हुए हैं, बट वी हैव टू कवर पोस्ट क्लासिकल, वी हैव टू कवर पोस्ट केनेशियन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व, ओकुन्स लॉ, डिज़ाइन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट टारगेटिंग, टेलर्स रूल, इन्फ्लेशन टारगेटिंग,
So those things we have to cover in the macro section. Third is money, banking and finance. That means it is divided basically into two parts. One related to the argument of money, demand and supply of money, money multiplier, deposit multiplier, high powered money, and demand for money के different जो theories हैं, classical theories, Keynesian theories, modern quantity theory of money. And the second section is your public finance, like questions on approaches to tax equity, benefit principle, ability to pay principle. Those things will be covered mainly in this section. So micro, macro, money, banking and finance. International economics is a very significant part because about 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है. 5 to 6 पार्ट हमेशा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मिलेंगे क्वेश्चन में. And it is broadly divided into two parts. One, all theories of international trade. तो स्टार्ट में ये सिर्फ ओल्ड एंड न्यू theories लिखा हुआ है विदाउट नेमिंग इट कि what are the old and new theories. But we have to cover all old theories like Ricardian model, Haberler theory, then HO model, specific factor model, standard trade model, new trade theories में internal economies of scale, external economies of scale, technological gap model, product life cycle model. So all theories of trade. And the second section is basically starting from the C part, balance of payment and the foreign exchange market. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कंटेंट यहाँ डिटेल में गिवन है. द लास्ट टॉपिक इन पेपर 1 विल बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बट इन दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट it is in detail all growth models around. If you count in terms of naming, that means what are the various different models given, like Harrod model, Domer model, Lewis model, Harris-Todaro model, Romer model, exogenous growth model, endogenous growth model, balanced growth strategy, unbalanced growth strategy. So it will be around 10 or 15 different models. So we have to cover all those models. उसमें से कुछ रेगुलर क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर अगर आपको याद है एज इट इज़ वहाँ लिख देना है. And the other part is basically including in this section planning and economy development, welfare indicator and the environmental section. तो environmental section एक significant part recently अब हो गया जिससे number of question बढ़ रहे हैं. मतलब बहुत ओल्ड प्रीवियस का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्वेश्चन कम है, बट रिसेंटली देर आर मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स सेक्शन. दैट इज बेसिकली योर पेपर 1. एंड रिगार्डिंग पेपर 2, you can divide paper 2 into broadly two part, like Indian economy in the pre-independence period. So it is economic history of India we can say. इसके लिए एक स्पेसिफिक बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ विच इज़ SSM देसाई. ये कवर करने के बाद आप थिंक मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आप कवर कर लोगे और वेरी इजी बुक है, पॉइंट वाइज होता है. इसकी स्कैन कॉपी साइट पे अवेलेबल होगी. सेकेंड पार्ट इज इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री रिफॉर्म एंड पोस्ट रिफॉर्म, दैट इज प्री 91 एंड पोस्ट 91. तो अगर आपसे जनरल एक परसेप्शन होता है रीडिंग पेपर 2 दैट इट इज हाउ मच इट इज डायनेमिक. Remember, if I divide this entire paper into 3 parts, one part is pre-independence, so that is completely static. और 3 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर उस सेक्शन से पूछे जा रहे हैं. देन प्री-लिबरलाइजेशन पीरियड, इंडिपेंडेंस ऑफ 1991 से के बीच का पीरियड, वो भी कम्प्लीटली स्टैटिक हो गया. डायनेमिक पार्ट बेसिकली सिंस 1991 आता है. अब इसे मैंने पेपर में जो कंटेंट यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे उसमें 10 डिफरेंट पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है. योर अप्रोच इन पेपर 2 विल बी स्लाइटली डिफरेंट. यू हैव टू कवर इट फ्रॉम द सेक्टर वाइज. सपोज यू टेक एग्रीकल्चर एज सेक्टर, तो यू हैव टू कवर एग्रीकल्चर इन द प्री रिफॉर्म पीरियड एज वेल इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, उसको एक साथ कवर कर लेना. सिमिलरली इंडस्ट्री, तो कोई टॉपिक अगर आपने बिगिन किया तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सेग्रीगेशन किया हुआ है, वो साइट पे अवेलेबल है, आपके पोर्टल पे भी वो मिल जाएगा. वो उनको डाउनलोड करके आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अपने पास रख लो. एग्रीकल्चर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें प्रोबेबल क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं वो क्वेश्चन को देखने से आइडिया लग जाए. यू विल गेट एन आइडिया दैट ओके द क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म और एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी और फूड मैनेजमेंट. सिमिलरली इंडस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दी पब्लिक सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट, MSME, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज. So just make those list of topic and then on every topic you have to be prepared in terms of the content
एंड उसको ऑगमेंट कर देना, इम्प्रूव कर लेना विद इकोनॉमिक सर्वे। तो अभी तक जो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का अवेलेबल है वो डिस्कशन है, बट ऑब्वियसली दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ विल बी कंडक्टिंग द न्यू इकोनॉमिक सर्वे लेक्चर्स, तो वो क्लास अपडेट हो जाएगी अपनी। सो इंडियन इकॉनमी को 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको सेक्टर वाइज करेंगे, दैट विल बी बेटर। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दी paper 1 and paper 2 lecture. So paper 1 basically contain micro, macro, money banking finance, international and growth and development. Approximately 85 to 90 number of lecture, each lecture of around 2 hour or 2.5 hour, 85 to 90 लेक्चर लग जाते हैं पेपर 1 को कंप्लीट करने के लिए। तो बिकॉज ये बैच 10 जनवरी को बिगिन हो रहा है, और अगर आपका एम 2023 का पेपर है तो अब प्रीलिम्स से पहले आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बट इफ़ आर रिपोर्टिंग सपोज आपने पहले दे रखा और आपको लगता है कि नहीं लास्ट 2 मंथ में प्रीलिम्स कवर हो जाएगा, जिनका फर्स्ट टाइम है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, जिन्होंने पहले क्लियर कर रखा उनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल होता है। तो विल बी बेसिकली यूजिंग द करंट लाइव क्लास जो कंटिन्यू रहेगी, और कुछ क्लास जो पहले वाले बैच में कंप्लीट हुआ, सो दैट वी कैन कंप्लीट द सिलेबस एट द अर्लीस्ट। ठीक है, रिपीट जो लेक्चर्स अभी से चलते रहेंगे वो इसी फॉर्मेट में चलते रहेंगे। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल सपोज आई स्टार्ट विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लासेस आपकी लाइव चलती जाएगी, और साइमल्टेनियसली माइक्रो और मैक्रो का जो मॉड्यूल होगा उस मॉड्यूल के अंदर भी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। बट वो वाली क्लास जो प्रीवियस जस्ट जो कंक्लूड हुआ है बैच, उस बैच की क्लास हो जाएगी, सो दैट आप उसको कंबाइन करोगे, मतलब न्यू एंड ओल्ड वी आर कंबाइनिंग सो दैट इट कैन बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट। अदरवाइज इफ आई गो बाय सिक्वेंशियल एवरी डे 1 क्लास मंडे टू फ्राइडे, तो पेपर 1 में अराउंड 85 to 90 लेक्चर है, और पेपर 2 विल बी अराउंड 40 प्लस। तो 130 to 140 लेक्चर को कवर करने में अगेन इट विल बी टेकिंग अराउंड 5 to 6 मंथ। ठीक है, दैट मच टाइम वी डोंट हैव फॉर दिस सेशन। तो विल बी हैविंग द करंट लाइव क्लास, दैट मीन्स यू कैन से हाइब्रिड ऑफ करंट लाइव क्लास एज वेल एज द प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो इस 10th जनवरी के बैच में बेसिकली विल बी प्रोसीडिंग इन दैट मैनर। तो विल बी स्टार्टिंग टुडे विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन, उसके साथ माइक्रो और मैक्रो की क्लास जो भी मॉड्यूल होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट कंबाइन होते हैं, वो आपको जब ऐप पे एक्सेस मिलता है तो माइक्रो का मॉड्यूल अलग होता है, मैक्रो का मॉड्यूल अलग होगा, मनी बैंकिंग का मॉड्यूल अलग है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल का मॉड्यूल अलग है। तो वी विल बी हैविंग 2 मॉड्यूल साइमल्टेनियसली, 1 जो लाइव में चलता रहेगा और एक जो प्री रिकॉर्डेड होगा एट अ टाइम, सो दैट आप एक क्लास जो लाइव दोगी वो देख लोगे और एक प्री रिकॉर्डेड भी देख लोगे, सो दैट वी कैन कंप्लीट द कंटेंट इन द we can say by mid of March maximum. ठीक है, but validity of course your course will be for the period of 6 month, but जिनको इस साल prelims देना है उनके लिए better suggestion ये होता है कि आप उस 6 मंथ के वैलिडिटी को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए प्री से पहले तक जब जितने पीरियड तक आपको देखना है, यू हैव टू डिसाइड। सपोज यू डिसाइड दैट आई विल सी दोज लेक्चर्स टिल 15th मार्च, तो अभी से लेकर के 15th मार्च का ड्यूरेशन काउंट हो गया। देन 15th मार्च टू प्रीलिम्स 28th मई आपने अपने अकाउंट को बस पॉज कर रखा है, और 28 मई को जब प्रीलिम्स हो जाएगा दोबारा से वो अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका जो इफेक्टिव 6 मंथ काउंट होगा वो उस पॉज पीरियड को एक्सक्लूड करके होगा। मतलब 2 महीने आपने 2.5 महीने अभी देख लिए, और 3-3.5 महीने पीटी और मेंस के बीच का जो पीरियड होगा उस समय देख लोगे आप। ठीक है, अदरवाइज जस्ट प्री से पहले सपोज अप्रैल और मई के मंथ में ऑप्शन को पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, तो उस पीरियड में आप अपने अकाउंट को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे सस्पेंड करा लेंगे टेम्परली, और रीएक्टिवेट हो जाएगा आफ्टर प्रीलिम्स। सो दैट इज़ बेसिकली फिजिबल। और ऑनलाइन लेक्चर, सो पेपर 1 एंड सेकेंड पेपर जिसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड करके बोला, इसमें अराउंड 40+ लेक्चर ये हो जाएंगे। इन एडिशन टू दैट we will be covering new economic survey। ठीक है, वो 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे जब मंथ एंड तक या नेक्स्ट मंथ में आ जाता है उसके बाद
इकोनॉमी सर्वे अराउंड 10 चैप्टर होते हैं पूरे सर्वे के अंदर जनरली, एंड इट टेक्स अराउंड 6 to 7 लेक्चर टू कंप्लीट. मतलब ईच वाइज चैप्टर वाइज इंडस्ट्री, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी मैनेजमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, वो सारे टॉपिक, इन्फ्लेशन. So you can say 7 more lecture here. So that will be your basically your economics optional part. I hope I have addressed all your concern regarding the new batch. And regarding the economic service, ठीक है, यहाँ प्रीलिम्स का बहुत रेशन नहीं है, डायरेक्टली आपका पेपर होगा जून एंड में, तो यू हैव इनफ टाइम स्टिल. बहुत ज़्यादा नहीं है, बट time is good enough to cover the content and also write the test. Now regarding the economic service, just the format will be examination pattern you must be familiar with. Our first paper is general English 100 marks, general studies 100 marks, and this general economics 1, 2, 3 and Indian economy, ये 200 मार्क्स है. तो ये 800 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स का कंटेंट है. 100 मार्क्स फॉर जनरल स्टडीज़ विच हैज़ ब्रॉडली 4 सेक्शन, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी. तो इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी से सेक्शन से कवर हो जाता है, बट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वी विल बी प्रोवाइडिंग लेक्चर फॉर इकोनॉमिक सर्विस, दोज हु आर परसुइंग इकोनॉमिक सर्विस पेपर. फॉर देम जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट रिक्वायर्ड है, बिकॉज यहाँ रिक्वायरमेंट कम है एज कम्पेयर टू द सिविल सर्विस. तो विल बी प्रोवाइडिंग लेक्चर फॉर दिस जनरल स्टडीज़ के अंदर ये 4 सेक्शन होंगे, नॉट फॉर जनरल इंग्लिश, बट विल बी प्रोवाइडिंग लेक्चर फॉर द जनरल इंग्लिश एज वेल एज फॉर द जनरल स्टडीज़. नाउ इकोनॉमिक सर्विस के ये जो कंटेंट बेसिकली इसका डिटेल आपको साइट पे मिल जाएगा. लाइक फर्स्ट पेपर यहाँ थोड़ा ज़्यादा डिटेल में सिलेबस लिखा हुआ है, अनलाइक सिविल सर्विस जहाँ पे थोड़ा मतलब बहुत ब्रीफली मैंशनड है, यहाँ डिटेल में सिलेबस मैंशनड है, तो कम कन्फ्यूज़न है. इलेबोरेशन ज़्यादा है, सिलेबस में इलेबोरेशन ज़्यादा है, सो यू विल बी मोर कंफर्टेबल. बट पेपर 1 इज बेसिकली इंक्लूडिंग योर माइक्रो, बट माइक्रो मोर और लेस न्यूमेरिकल इन नेचर, एंड द सेकेंड पार्ट इज मैथ्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स. सो मेनली द नेचर ऑफ क्वेश्चन इन फर्स्ट पेपर विल बी मैथमेटिकल, इट इज़ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड. माइक्रो मैक्रो के कंटेंट आपको पेपर सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर के अंदर भी है, बट वहाँ पे न्यूमेरिकल का कंटेंट नहीं होगा. पेपर 1 का अप्रोच थोड़ा न्यूमेरिकल होगा, इट इज़ नॉट कंप्लीट न्यूमेरिकल होता है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल हैव अ न्यूमेरिकल बेंट, न्यूमेरिकल अप्रोच उसमें ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड होगा वो. तो फर्स्ट पेपर का थोड़ा आपको ध्यान रखना, बिकॉज ये पेपर वी कैन से डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है बिटवीन सिविल सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, दोज हु आर परसुइंग फॉर बोथ एग्जाम. तो जो सिविल सर्विस के लिए दे रहे हैं उनको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है फॉर जनरल इकोनॉमिक्स 1, सेकेंड, थर्ड एंड इंडियन इकोनॉमी. वो वी कैन से मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज सेम, पेपर का क्वेश्चन का नेचर भी सिमिलर होगा, ऑल्दो वी विल बी हैविंग द टेस्ट सीरीज फॉर इकोनॉमिक सर्विस एज वेल एज फॉर द सिविल सर्विस सेपरेट, बट कुछ क्वेश्चन कॉमन रहते हैं. और वो आप जब पास्ट ईयर पेपर देखोगे सिविल सर्विस का और इकोनॉमिक सर्विस का, तो आपको मिल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो बहुत सिमिलर यहाँ भी पूछेगा और यहाँ भी पूछेगा. The first paper is all about micro and econometrics, and this second paper briefly is economic thought, concept of national income accounting. तो ये 2 पार्ट आप कह सकते हो कि बिल्कुल अलग हो जाएंगे जो सिविल सर्विस में कवर नहीं हो रहे, बट ये ओवरऑल टोटली ओवरलैप कर जाएगा, पूरा का पूरा मैक्रो सेक्शन ये सेपरेट हो जाएगा. फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा. सो विल बी स्टार्टिंग विद दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. In this new batch will be starting with this, so I will explain to what extent they are common. Then international economics ये completely common है, balance of payment completely common है, global institution IMF WTO वहाँ भी करने हैं, कुछ specifically यहाँ पे required होंगे, but most of it is common. Third paper में public finance is similar, environmental economics, some additional topic we will be covering for the economic service, जो civil service में cover नहीं है. civil service के अंदर भी होगा, बट यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर आपके लिए रहेंगे. तो कंटेंट जब आप इकोनॉमिक सर्विस में कवर करते हैं, तो हेयर विल बी हैविंग अराउंड 240 to 250 लेक्चर. आउट ऑफ दैट अबाउट 130 to 140 लेक्चर
दैट विल बी इन कॉमन विथ IAS इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, मतलब ये क्लास आपकी कॉमन है, इसका ध्यान रखेंगे। मतलब सेम लेक्चर हो रहा है बट मेनली वो क्लास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की है, 130 to 140 वो आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा। जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होगा फॉर इकोनॉमिक सर्विस, स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक सर्विस, वी कैन से specific topics. Now those specific topic will be around 100 प्लस लेक्चर ही होगा। इस 100 प्लस लेक्चर के कंपोजिशन बेसिकली होंगे लाइक जनरल इकोनॉमिक्स 1 जो इकोनॉमेट्रिक्स और माइक्रो न्यूमेरिकल है, दैट इटसेल्फ विल टेक अराउंड 40 to 50 लेक्चर फॉर पेपर 1 बिकॉज आई सेड इट इज़ टोटली डिफरेंट पेपर। जो रिमेनिंग लेक्चर होगा उसमें जनरल स्टडीज़ के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उनके वीक लेक्चर, सो दैट रिमेंबर the purpose of giving those lectures is basically to give you a push of around 5 to 10 marks. तो जनरल इंग्लिश में और जनरल स्टडीज़ में अगर आप अराउंड 5 to 10 मार्क्स का पुश मिल जाता है तो आई थिंक दैट विल बी गुड इनफ। मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 10-15 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको इग्नोर करके नहीं चलना कि यू आर जस्ट ठीक है पेपर में देख लेंगे, पास से देख लिया उससे हो जाएगा। अगर आपको 5 नंबर 10 नंबर का इम्प्रूवमेंट मिल जाता है विथ आवर गाइडेंस, देन ओवरऑल सिलेक्शन में वो मैटर करता है। तो विल बी प्रोवाइडिंग नॉट ओनली द लेक्चर एंड द टेस्ट सीरीज, जनरल स्टडीज़ की क्लासेस होंगी, जनरल इंग्लिश की क्लासेस होंगी, प्लस आपका जो इंटरव्यू गाइडेंस होता है, बिकॉज करंट ईयर का जो उसको सिलेक्शन है उसमें उसका काफ़ी क्रिटिकल रोल रहा है, जो इंटरव्यू गाइडेंस यहाँ से प्रोवाइड हुआ। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे बेसिकली डिस्कस करना है कि लास्ट 2 ईयर से बेसिकली जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हो रहा है। यू कैन से कि नंबर ऑफ सीट्स इस बार 23-24 थे, लास्ट ईयर इट वाज 14, बट वो जो चेंज है वो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि जो मार्किंग है वो स्केलिंग डाउन होती जा रही है। करंट ईयर का मैं ये यूपीएससी के साइट पे अवेलेबल होगा 22 जिसका फाइनल रिजल्ट अभी रिसेंटली आया, उसमें जनरल कैटेगरी के अंदर आउट ऑफ 1000 द कट ऑफ वाज 418, ठीक है 418, दैट मीन्स नॉट इवन 42%। नोइंग दैट कि 42% पे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाता है, मतलब कंफर्टेबल अगर 46-47% स्कोर होगा तो कंफर्टेबल हो जाएगा। तो नोइंग दैट कि 45-46% इज़ वेरी गुड इनफ। फोकस ये करना है कि मुझे ये नहीं कि कंप्लीट 100% सिलेबस करेंगे तभी होगा। इवन इफ़ यू हैव कवर्ड लेटेस्ट से 80% ऑफ द कंटेंट, बट उस कंटेंट को आपने बार बार लिख रखा और एग्जैक्ट आंसर लिखोगे, देन इट विल गिव यू अ स्कोर ऑफ अराउंड 47-48%। मतलब जो लिखो उसमें स्कोर करना है 55-60% का, इफेक्टिव होना चाहिए वो आंसर। तो कट ऑफ बेसिकली लास्ट ईयर इट वाज आई थिंक 440, तो 440 से ये 418 हो गया, मतलब 22 मार्क्स का बेसिकली रिडक्शन है। उससे पहले वाले ईयर में देखेंगे तो इट वाज अराउंड 460 समथिंग। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कट ऑफ डिक्लाइन हुए, कुछ इंडिकेट करता है कि स्केलिंग डाउन हो रही है, मतलब डेलिबरेटली स्कोर उतने नहीं दिए जा रहे जितने पहले दिए जाते थे। एंड इट इज़ आई फाइंड कॉमन इन सिविल सर्विस, एनी ऑप्शनल यू कैन टेक, जो स्कोर अराउंड 2018 से पहले 310-320 के मिल जाते थे, मतलब जो टॉपर होते थे उनके अंदर वो स्कोर मिल जाता था, 300 प्लस का स्कोर तो मिल जाता था। अब 2018 ऑनवर्ड्स क्या हो गया, जो इवन जो टॉप 10 में रहते हैं उनके भी 300 नहीं होते। तो ये शो करता है कि बेसिकली डेलिबरेटली एक स्केलिंग डाउन की जा रही है, मतलब नंबर को कम सप्रेस करके रखना, उसमें ज़्यादा नंबर नहीं देने, लीनियंट मार्किंग नहीं है। तो आप किसी भी पीरियड में जब प्रिपेयर करते हो तो आप उस पीरियड में जो कट ऑफ जा रहा है उस पर ध्यान देना है कि इस पीरियड का ये फैक्ट है कि ये 418 पे आपको सिलेक्शन मिलता है, मतलब इंटरव्यू कॉल मिलता है। ऑल्दो जो फाइनल कट ऑफ रह गया आउट ऑफ 1200 585 का है, तो अगर आप ओनली मार्जिन पे हो यहाँ पे तो इंटरव्यू फेस तो कर लेंगे बट फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको मार्जिन से अराउंड 40 मार्क्स ऊपर रहना है। तो अगर 418 का स्कोर है तो अराउंड 450-460 का स्कोर होना चाहिए, दैट विल बी अ डिसेंट, सो दैट अगर इंटरव्यू थोड़ा मॉडरेट भी रहता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव ना भी हो, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखेंगे, अपनी कैटेगरी वाइज ही आप देख लोगे जहाँ जहाँ कट ऑफ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपका ये, ठीक है। तो विल आई थिंक वी हैव प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन फॉर द इकोनॉमिक सर्विस ऑल्सो। एंड रिगार्डिंग द टेस्ट,
सीरीज, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये ओल्ड बैच जो पहले कंप्लीट हुआ और जो न्यू स्टार्ट हो रहा है दोनों के लिए कॉमन है, इट इज़ नथिंग सेपरेट. एंड फॉर IAS there are 12 tests and for IES 15 टेस्ट. ठीक है, 15 टेस्ट में जनरल इकोनॉमिक्स 1 के 4 टेस्ट होंगे, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3, इंडियन इकॉनमी और फिर GS और लैंग्वेज का एक एक टेस्ट. क्लियर. और AS के अंदर 7 टेस्ट सेक्शनल है, 5 टेस्ट फुल लेंथ है कंप्लीट सिलेबस का. एंड आउट ऑफ 12 8 फॉर पेपर 1, 4 फॉर पेपर 2. डिलिबरेटली ऐसे डिज़ाइन किया गया क्योंकि पेपर 1 के अंदर कंटेंट ज़्यादा है, टाइम आपको कवर करने में भी ज़्यादा लगे एंड यू नीड मोर प्रैक्टिस इन पेपर 1. क्लियर. सो I have addressed all the concerns. Still if you have any doubt and if you want to consult me, then you can call me on this number. Clear. So you can call me on this number for any other further query related to the content and how to proceed, and for any personal guidance also. So we'll be starting with growth and development section. So again I repeat, this new batch commencing from 10th of January, it will be basically a hybrid of the new current live classes as well as some previously recorded lecture. ठीक है, तो 2 मॉड्यूल आपके साथ में चलेंगे, एक जो करंट लाइव चलता जाएगा और एक आपका ओल्ड वाला होगा. ओल्ड वाली सिक्वेंसिंग एक मतलब वीकेंड तक उसको कर देंगे सो दैट वो पैरेलल फिर आपकी क्लास चलती रहेगी. और क्लास में मैं गाइड करता रहूँगा कि ठीक है इस प्रीवियसली रिकॉर्डेड में ये टॉपिक चल रहा है, यू शुड प्रोसीड इन दिस मैनर, और उस लेक्चर के अंदर भी इंक्लूडेड होता है. और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में बिकॉज उसमें डायमेंशन और भी ज़्यादा है, सो वी कैन स्टार्ट विथ 1 और 2 लाइव क्लासेस. जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है लाइक इकोनॉमेट्रिक्स है तो उसमें आपके करंट लाइव क्लासेस भी रहेंगी, और जो स्टैटिक पार्ट हो जाएगा जो भी जस्ट कंक्लूडेड बैच के अंदर हुआ वो पार्ट आपका कॉमन हो जाएगा. ठीक है. So we'll start with growth and development section. ठीक है, shortly. ठीक है, so we'll start with growth and development. Now first of all write down the detail of this topic. Detail in the sense what are the different growth model we have to cover, and it is not that there is a exhaustive list of it कि वो complete list है जहाँ available है जिसको आपने cover कर लिया, but from the references, the questions from the previous year question we can come to a conclusion that these are the questions generally asked. Now in the growth and development section, just see the content part first. This growth and development section include it says theories of growth, Harrod's model, but questions are there from the Harrod's model, Harrod-Domer model, separately Domer model. There will be question from Solow model, there will be question from the Romer model. So theories of growth, it simply says Harrod's model, but we have to cover other models as well. Lewis model of development, balanced and unbalanced growth, human capital and economic growth, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो एक्चुअल में यहाँ जो लिस्टिंग है वो अराउंड 4-5 मॉडल्स की है, बट वी फाइंड अराउंड 10+ मॉडल्स आ देयर, 10 to 15 मॉडल्स हैं जिसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो आई विल बी जस्ट राइटिंग द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल द डिटेल ऑफ दैट ग्रोथ मॉडल. द अदर पार्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्लूड प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, मेडल थ्योरी, कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Then this also include trade and economic development. It include planning and economic development. It include welfare indicators like HDI. तो HDI में inequality adjusted SDI क्या होता है, gender development index क्या है. तो there are various indicator of welfare. So what are the various indicator and how they are constructed. And the last part is development and the environmental sustainability. So this is mainly your environmental economics. Environmental economics recently क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं. ओल्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड फ्यू क्वेश्चन, बट रिसेंटली द वेटेज ऑफ दिस सेक्शन हैज़ इंक्रीज.
जो सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कंटेंट मेंशन हो गया इन दी सिविल सर्विस। इकोनॉमिक सर्विस के अंदर थोड़ा फर्दर डिटेल है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की, तो विल बी हैविंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द इकोनॉमिक सर्विस कोर्स एज वेल, बट जो कॉमन होगा अराउंड 3 to 4 लेक्चर वी कैन से कॉमन फॉर बोथ एंड 3 to 4 सेपरेट फॉर ओनली इकोनॉमिक सर्विस। जो सिविल सर्विस भी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रेफर सजेस्टेबल है कि वो वाला लेक्चर भी कर लो आप, बिकॉज डिफाइंड नहीं होता सिलेबस का कि वो कोई फ्यूचर में नहीं पूछा है, अभी नहीं पूछे गए, फ्यूचर में दे में बी आस्क्ड। नाउ आफ्टर कवरिंग दैट जस्ट सी द वेटेज ऑफ दिस सेक्शन। नाउ इन 2022 we find question number 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन का मतलब हो गया अराउंड 100 मार्क्स। ठीक है, अराउंड 100 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। एंड आउट ऑफ दिस 6 क्वेश्चन सम क्वेश्चन आर बेसिकली फ्रॉम द कोर मॉडल, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय द वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। हैरोल्ड्स मॉडल से क्वेश्चन हो गया, लुइस मॉडल से क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, यू हैव अ वेल प्रिपेयर्ड आंसर, जो नोटबुक में लिख रखा उसको आपने प्रैक्टिस कर रखा उसे एज इट इज़ वहाँ लिख देना है बस। एंड यू विल फाइंड सम रिसेंट क्वेश्चन लाइक डिस्टिंग्विश बिटवीन द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर एम्पावरमेंट मेजर इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट एंड द कंस्ट्रक्शन। सो यू मस्ट नो हाउ दोज इंडेक्स आर कंस्ट्रक्टेड, मतलब हाउ दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड, हाउ दे यू कैलकुलेट इट। कैलकुलेट नहीं करना बट मेथडोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, उसके कंपोनेंट क्या क्या है। देन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एनवायरमेंट अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ द COP, ये रिसेंट क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी हो गए। 2021 अगेन यू फाइंड फ्यू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 21 का है। 21 अगेन वो फाइंड 6 to 7 पार्ट्स। तो 6 to 7 पार्ट्स बेसिकली एवरी ईयर है क्वेश्चन में, तो एक सिग्निफिकेंट वेटेज है इस सेक्शन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। 100 के अप्रॉक्सीमेटली आप वेटेज लेके चलो, 100 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के है। नाउ गिवन दैट वी हैव टू कवर इट इन डिटेल, तो डिटेल के लिए जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द वेरियस टॉपिक्स दैट विल बी कवरिंग इन दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन। सो आई राइट ऑन द फर्स्ट वन। ठीक है, यहाँ पे जो लिखूँगा वो थोड़ा इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिख रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस ऑर्डर में, नॉट इन द ऑर्डर इन विच दिस मॉडल्स हैज़ इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो वी कैन से सोलो मॉडल, main idea of this model is that economy's GDP is determined by, or it is a function of, stock of capital in the economy and labor force and also on technology। तो ये प्रोडक्शन का फंक्शन हो गया। फंक्शन को आपने एक फॉर्म दे रखा है, ए कैपिटल टू द पावर अल्फ़ा लेबर टू द पावर 1 माइनस अल्फ़ा। तो जब y लिखेंगे कहीं पे भी इसका मतलब GDP है। तो when we say what determine the growth, but question is how you can measure growth. Growth is measured in terms of India's growth rate is, अब ग्रोथ रेट करें तो ये GDP का ग्रोथ रेट है, तो GDP is an indicator of growth, GDP पर कैपिटा इज अनदर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। तो पर कैपिटा में निकालना होगा तो GDP को डिवाइड करेंगे विथ पॉपुलेशन। But important point is this GDP is a function of capital, that is plant, machinery, stock of capital. It is also a function of labor and this A-recipient technology. तो इकॉनमी का जो GDP है वो फंक्शन है टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का और लेबर का, मतलब टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड लेबर इंटरैक्ट इन इकॉनमी and that interaction determine the output. So we have to explain that, but we have to explain in detail, and there are various sub part of the Solow model. So I will start with the Solow model. I will give the sub part of the Solow model, like conditional convergence, unconditional convergence, level effect, what is growth effect, what is technological progress, labor augmenting, then what is Solow residual, वो क्वेश्चन आ रखा है 2017 में. So first important model will be the Solow model. Second,
Harrod model, this is a separate Domer model, and there is a combination of both also, Harrod Domer model. Solow model, Harrod model, Domer model, and the Harrod Domer model. You can club these and say that all these models are basically called as the exogenous growth model. इन सबको exogenous growth model कह रहे हैं. But why they are called exogenous? Exogenous growth model. These are exogenous growth model. But what is the meaning of exogenous? Exogenous का मतलब है कि in this type of model we will say that growth of the economy is a function of, growth of an economy is a function of saving rate, growth of an economy is a function of investment rate, growth of an economy is a function of population growth rate, growth of an economy is a function of technical progress growth rate. But saving rate, technical progress growth rate, population growth rate are exogenously given for us. Growth depends upon these factors, but it is also correct that those factors in turn determine the growth. There is a two-way relationship. Once you say that growth is a function of technical progress, but that technological progress growth rate you assume it to be something given. You simply assume that India का technical progress growth rate 2% है, US का technical progress growth rate 4% है, without explaining कि दो country का technical progress growth rate different क्यों है, वो पार्ट यहाँ explain नहीं होगा. एक्सोजेनस में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एंडोजेनस में करेंगे. तो जो एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल होगा वो आप कह सकते हैं कि इसके लिमिटेशन को क्या करेगा, ओवरकम करेगा. सो दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ एक्सोजेनस ग्रोथ थ्योरीज. रिगार्डिंग द एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी, रिगार्डिंग द एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल, तो एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल में क्या करना है, जो ग्रोथ रेट है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सेविंग रेट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस ग्रोथ रेट. बट एक्सोजेनस में ये सारे वैल्यूज़ हम एक गिवन नंबर मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रोथ डिपेंड अपॉन टेक्निकल ग्रोथ रेट, बट जो टेक्निकल ग्रोथ रेट है ये किसका फंक्शन है वो भी एक्सप्लेन होगा. और प्रीवियस मॉडल में उस नंबर को सिंपली क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे दैट देयर इज अ गिवन टेक्निकल प्रोग्रेस ग्रोथ रेट, देयर इज अ गिवन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. जैसे आप पॉपुलेशन से ज़्यादा इजीली रिलेट कर लोगे, वी से दैट ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन, बट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ग्रोथ. देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप, इट्स नॉट ओनली वन वे रिलेशनशिप. पॉपुलेशन अफेक्ट ग्रोथ and growth also affect population. So this is in fact a two-way relationship. That two-way relationship will be discussed in detail in the endogenous growth model. And the endogenous growth model के अंदर we can start with AK model, then Romer model. रिसेंट ईयर में रोमर मॉडल के कई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, यहाँ जो इस पेज पे लिखा है ये एग्जाम्पल है एंडोजेनस के. Endogenous growth model is AK model, endogenous is Romer model, and endogenous is also human capital and economic growth model. Clear? Now in this exogenous growth model, जो सोलो मॉडल है, हैरोड डोमर मॉडल है या डोमर मॉडल है, इन सब में एक कॉमन आइडिया है, and that common idea is economic growth is an outcome of capital accumulation.
Economic growth is an outcome of capital accumulation. And what is meaning of capital accumulation? Capital accumulation is nothing but investment. Capital accumulation is nothing but investments. For example, on first day of 2022, suppose 1st of April 2022, the stock of capital available in the economy is 400. और ईयर एंड पे 31st ऑफ मार्च 2023 अगर ये स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होकर के 700 हो जाता है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ मच कैपिटल हैज़ बीन अकुमुलेटेड, तो जो 300 एडिशनल कैपिटल अकुमुलेट हुआ है उसकी वजह से इकॉनमी का ग्रोथ हो रहा है. तो इकॉनमिक ग्रोथ इज़ बेसिकली एन आउटकम ऑफ अकुमुलेटिंग मोर कैपिटल. Economic growth is basically an outcome of accumulating more capital. So capital accumulation is an important part. Capital accumulation is an important part in the initial pattern of growth. That means they are focusing on how economy accumulate more capital. But when we start with the Lewis model or Harris-Todaro model, वो एक different dimension को देख रहा है. तो different dimension में अगर आप topic की numbering करते रहे ना, topic number 9 लुइस मॉडल. ठीक है, लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन में ये. अब लुइस मॉडल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट. रिमेंबर, डेवलपमेंट या ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है. इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स. कोई भी मॉडल ऐसा डेवलप नहीं हो रहा है जिसमें हम सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे. ईच मॉडल विल हाईलाइट 1 or 2. डेवलपमेंट के बहुत सारे डायमेंशन हैं एंड ग्रोथ इज बेसिकली पार्ट ऑफ दैट डेवलपमेंट. So it has various dimensions. That means various factors determine growth. अब growth अगर multiple factor के ऊपर depend कर रहा है तो आप सारे factor एक single model में explain नहीं हो रहे. We use one model to highlight one dimension. We use another model to highlight the second dimension. When you use third model to highlight the third dimension. So over a period of time when we will cover all those models, then we can understand better what determine the development and growth. ठीक है, मतलब एक सिंगल मॉडल में हम सारे डायमेंशन इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट विल बिकम टू कॉम्प्लेक्स. फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो चेंज हुआ वो किस फैक्टर की वजह से हुआ. तो सपोज फॉर एग्जांपल यू कीप अदर फैक्टर कांस्टेंट एंड ओनली से दैट ओके दिस ड्यू टू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट रेट दिस इज हैपनिंग, तो एटलीस्ट वो कंक्लूड कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वजह से ये होता है. बट इकॉनमी के चेंज जो होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस एक साथ हो रहे होते हैं. तो development and growth depends upon various factors. One factor will be highlighted in the Lewis model in the sense that economy का structure change होता है during the economy development. Structure changes from traditional sector to modern sector. मतलब economy के अंदर duality है. Economy is characterized by dualism. Dualism in the sense there is coexistence of traditional sector, you can relate it with the agriculture, and there is there is existence of modern sector, you can relate it with the industries. To start with, agriculture में surplus labor होगा, labor abundant होगा, और जो abundant labor agriculture और traditional sector का होगा वो move किधर करेगा? इंडस्ट्री में. बट किस स्पेस से मूव करेगा? सारे वर्कर एक ही साथ मूव करके इंडस्ट्री में क्यों नहीं आ जाते? इंडस्ट्री के लेबर एब्जॉर्ब करने की अपनी एक कैपेसिटी है. इंडस्ट्री नीड हाउ मच लेबर, दैट डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री में कितने का इन्वेस्टमेंट है. इफ़ यू सेट अप मोर प्लांट एंड मशीनरी देन यू नीड मोर लेबर टू ऑपरेट दैम. बट यहाँ पे अगर प्लांट और मशीनरी का ग्रोथ ही कम हो रहा है तो फिर लेबर एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? एग्रीकल्चर तो लेबर का सप्लायर हो गया, डिमांड कौन कर रहा है? बट कितने लेबर का डिमांड करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंडस्ट्री के लेबर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पे, और वो डिपेंड करेगा इंडस्ट्री में कितने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो इनिशियली एग्रीकल्चर से वर्कर माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स इंडस्ट्री. तो ये जो प्रोसेस है स्ट्रक्चरल चेंज का, उस चेंज को बेसिकली एक्सप्लेन किया जाएगा इन दी लुइस मॉडल. दिस मॉडल विल बी फर्दर इलेबोरेटेड बाय हैरिस-टोडारो मॉडल. हैरिस-टोडारो मॉडल इनफैक्ट जो अर्बन सेक्टर का इनफॉर्मल सेक्टर है उसको हाईलाइट करता है. ये रूरल अर्बन माइग्रेशन थ्योरी है. माइग्रेशन के पार्ट को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा हैरिस-टोडारो मॉडल.
या 9 और 10 ये जो लिख रहे हैं इसमें बेसिकली फोकस हो जाएगा ऑन दी लेबर पार्ट, लेबर वाले पार्ट पे यहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे. देन 11th मॉडल और स्ट्रैटेजी वी कैन से बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी. बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी. मतलब एक आइडिया कह रहा है कि इकोनॉमी के ग्रोथ में वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन growth of all sectors. We have to maintain balance between agriculture and industry. We have to make a balance between small scale and large scale. We have to maintain a balance between domestic sector and the external sector. We have to make a balance between directly productive activity and social overhead capital. Directly productive activity, like you can relate it with the transportation facilities, car manufacturing. Overhead capital हो जाएगा like roads, पावर फैसिलिटीज़. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरहेड कैपिटल है, और जो डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो गया वो एक तरीके का कंज्यूमर गुड हो गया. तो उनके बीच हमें बेसिकली बैलेंस मेंटेन करना है. बट हाउ यू कैन मेंटेन बैलेंस? सपोज इकॉनमी इज़ पुअर और वो डेवलप करना चाहता है, तो उसकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी? एक सजेशन है मेंटेन अ बैलेंस, बट टू मेंटेन अ बैलेंस यू नीड इनफ रिसोर्स. तभी तो हम सारे सेक्टर में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो यू हैव टू चूज वन. जो क्रिटिकल होगा उसको पहले चूज करेंगे. दैट मीन्स यू क्रिएट अ इम्बैलेंस, अगेन मेंटेन अ बैलेंस, अगेन क्रिएट इम्बैलेंस, अगेन मेंटेन अ बैलेंस. सो इट विल बी बेसिकली a chain of disequilibrium. So that chain of disequilibrium will be explained in the unbalanced growth strategies. Then 12th is a critical minimum effort theory. Critical minimum effort theory given by Liebenstein. Critical minimum effort theory given by Liebenstein. ठीक है, आई थिंक 2016 या 17 में दिस वाज वन क्वेश्चन. इसका मेन आइडिया कि इकॉनमी जो पुअर कंट्री है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो एक तरीके से स्टैगनेंट इकॉनमीज़ हैं. तो स्टैगनेंट इकॉनमी है तो हाउ दे विल टेक ऑफ. तो जस्ट एज इन ऑर्डर टू टेक ऑफ अ एयरक्राफ्ट यू नीड अ क्रिटिकल थ्रस्ट. उससे कम एफर्ट लगाएंगे तो वो टेक ऑफ नहीं करेगा. तो वैसे इकॉनमी के लिए भी सही है. इकॉनमी के टेक ऑफ के लिए भी एक क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट लगाना है. इफ़ यू अप्लाई एफर्ट लेस देन दैट it will not take off. So what is that critical minimum effort? Then next theory, it highlights the vicious cycle of poverty. Next theory development highlighting the vicious cycle of poverty. इसका कहना है कि इकॉनमी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, पुअर कंट्रीज है, वहाँ एक विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी है. विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों में है. सप्लाई साइड इन द सेंस विथ लो पर कैपिटा इनकम देयर विल बी लो सेविंग, विथ लो सेविंग देयर विल बी लो इन्वेस्टमेंट, विथ लो इन्वेस्टमेंट देयर विल बी लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, दैट विल रिजल्ट इनटू लोअर इनकम. डिमांड साइड कहता है कि अगर इनकम कम है तो मार्केट का साइज़ कम होगा. जब मार्केट का साइज़ कम है तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट में कम है. इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में कम होना है. एंड विथ लो इन्वेस्टमेंट देयर विल बी लो ग्रोथ. सो द विशेस साइकिल इज ऑपरेटिंग हियर. तो वो सर्कुलर कॉजेशन थियरीज है. तो जस्ट मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, एक्सप्लेन जब करेंगे इट विल कम इन डिटेल. सो नेक्स्ट थियरी विल बी बेसिकली हाईलाइटिंग दैट विशेस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्टिंग इन दी developing countries. Then 14th, middle theory.
Middle theory, it talks about that development in any economy witness two type of effect. One is called as the backwash effect and other is called spread effect. Backwash effect or spread effect. This model will highlight why inequality changes in the growth process. So backwash effect basically refers to the all adverse effect. Suppose growth का एक सेंटर है, ग्रोथ का सेंटर कहने का मतलब हो गया, यू कैन रिलेट इट विद से if the growth is happening in one particular metropolitan city, तो अदर एरिया से उस सिटी की तरफ लेबर माइग्रेट कर जाएगा, कैपिटल का मूवमेंट हो जाएगा, वहाँ का बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो जाएगा जहाँ पे मार्केट डेवलप हो रहा है, तो अदर एरिया से लेबर माइग्रेट कर गया, वहाँ से कैपिटल भी माइग्रेट कर गया, मूव कर गया, तो अदर एरियाज़ का डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जो सेंटर होगा, ग्रोथ का सेंटर होगा। तो ग्रोथ का सेंटर का एक्सपेंशन करने पे जो अदर एरियाज़ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, उससे इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। और स्प्रेड इफेक्ट का मतलब, स्प्रेड का मतलब ये ग्रोथ का जो सेंटर है ये स्प्रेड कर जाएगा। अब दिल्ली स्प्रेड कर गया एनसीआर में, तो ये स्प्रेड इफेक्ट है। स्प्रेड इफेक्ट से इनइक्वालिटी कम होगी, तो स्प्रेड इफेक्ट विल रिड्यूस इनइक्वालिटी, बैकवाश इफेक्ट विल इंक्रीज इनइक्वालिटी। तो इफ बैकवाश इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग देन इनइक्वालिटी विल इंक्रीज, स्प्रेड इफेक्ट इज मोर इनइक्वालिटी विल डिक्रीज। और दूसरा एस्पेक्ट होता है कि ये जो ग्रोथ का एक सेंटर है, मुझे ऐसे सेंटर कई सारे डेवलप करने हैं। इफ यू आर फोकस ऑन ओनली वन ग्रोथ सेंटर तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, सो यू हैव टू क्रिएट मेनी ग्रोथ सेंटर्स। So this will be explained basically in the middle theory. Then 15th Rostow stages of growth. ये ओल्ड theories है, stages of growth की बात कर रहे हैं इसमें। It talks about the stages of growth, मतलब in an economy where economic development is taking place, there are various stages of growth: stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5. That means economy passes through various stages during the economic development process. Then कुछ रेयर क्वेश्चन जो पेपर में आ रखे हैं उसमें, वन इज डिपेंडेंसी मॉडल। डिपेंडेंसी मॉडल ऑफ ग्रोथ, dependency model of growth. Dependency model, the main idea is if you divide the entire world into two parts, less developed countries and the developed countries, तो ये डिपेंडेंसी मॉडल कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है लेस डेवलप्ड कंट्रीज का, वो कंटिंजेंट है ऑन डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। इन व्हाट वे कंटिंजेंट? In what way we depend upon the developed countries? We depend on developed countries for technology, we depend on developed countries for capital, तो capital की dependency है, technological dependency है, that means our growth depends upon their growth, but their growth does not depend upon our growth. So in that way we are dependent. जो less developed countries हैं वो dependent है। तो डिपेंडेंसी मॉडल का आर्गुमेंट, इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ तक बेसिकली दीज आर द वेरियस मॉडल्स। तो जो सिलेबस में लिखा था, यहाँ 4-5 टॉपिक लिखे थे, उसको मैंने यहाँ 16 डिफरेंट टॉपिक में कर दिया। फ्यू ऑफ देम आपने उसको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ा होगा। कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे मिलेंगे जो आपने उसको कवर कर नहीं किया हुआ। तो अब ये जो 60 ये टॉपिक जब मैं लिख रहा हूँ, तो रिमेंबर ये मैंने पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं लिखा अभी। ये 16 जो पार्ट मैंने क्रिएट किया है वो ये वाला पार्ट क्रिएट किया, ये ए और बी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, एक प्लानिंग, वेलफेयर इंडिकेटर और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स।
वो आप कह सकते हो एक सेकंड सेक्शन हो जाएगा. मतलब if you are planning to cover growth and development in two different parts, तो one part will be the 16 growth models, the second part will be the remaining. बट इसमें फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगता, इन्वायरमेंटल में लगेगा बट अदरवाइज वो फिर वन क्लास का टॉपिक हो जाता है. क्लियर. सो अराउंड 15 to 20 लेक्चर ओवरऑल करीब लग जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कवर करने के लिए. क्लियर. तो ये कंटेंट जहाँ लिख रखा है, रिमेंबर वी हैव रिटन अप टू दिस बी. इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट डेवलपमेंट एंड जस्ट कंप्लीट कर लो, बेटर रहेगा. बिलो दैट अब वो मॉडल ओवर हो गया, तो जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मॉडल वहाँ पे कंप्लीट है, growth models. Then just mention one topic, development and international trade, planning and development, welfare indicator and environmental economics. Few things that you can write. Development and international trade, planning and development, welfare indicator and environmental economics. Sorry. Clear. So we can start with the first model. So from next page you can write solo model. Now within this solo model, first we explain the basic model. And that basic model will deal with determining the steady state level of capital. So what is the meaning of steady state and what is the significance of that steady state? Then second, what is the effect of change in saving rate? What is the effect of change in saving rate on growth? सेविंग रेट बदल जाए तो इसका ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? थर्ड, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. If population growth will change, then how it will affect the economy. Fourth, what is the effect of technological progress? If technology will progress, how it affects the economy. Remember, we are not explaining what determines saving rate, we are not explaining what determines population growth rate, we are not determining what determines technical progress. We are simply asking if technological progress will change, then how it will affect the economy. Why it changes, how it changes, we are not explaining that, because this is part of which model? Exogenous growth model. These are part of exogenous growth model. Then fifth is what is the meaning of golden rule level of capital. Golden rule level of capital. Meaning of golden rule level of capital. Golden rule is basically that level where consumption per worker is highest, जहाँ पे इकोनॉमी का कंजम्पशन पर वर्कर मैक्सिमाइज हो जाएगा. एंड दिस वाज क्वेश्चन इन, यू कैन सी इट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन.
देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ना जरा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया डिस्क्राइब द ग्रोथ पाथ which once economy attain it will give a higher level of per capita consumption than any other growth path for all the time। अब क्वेश्चन में कहीं पे सोलो मॉडल वर्ड यूज नहीं हो रहा है, बट वी नो दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सोलो मॉडल एंड इट इज आस्किंग फॉर गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल, बिकॉज गोल्डन रूल इज दैट लेवल वेयर कंजम्पशन पर वर्कर इज हाईएस्ट, मैक्सिमाइज होता है। तो व्हाट इज द ग्रोथ पाथ विच वंस इकोनॉमी अटेन इट will give a higher level of per capita consumption than any other growth path, क्योंकि गोल्डन रूल पे वो मैक्सिमम है, तो किसी भी अदर स्टॉक पे वो मैक्सिमम उससे कम ही होना है। इट विल गिव अ हायर लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन। सो दिस वाज बेसिकली गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल क्वेश्चन। देन इन दिस टॉपिक you can add what is the meaning of level effect and growth effect, meaning of level effect and growth effect, level effect and growth effect। then concept of convergence। Within convergence there are two type of convergence: conditional convergence, unconditional convergence। Conditional and unconditional convergence, conditional and unconditional convergence। And you can add one more, which is what is the meaning of solo residual, solo residual। This was question in 2017, meaning of solo residual। क्लियर? तो ये कंटेंट लिखा है आपने फर्स्ट मॉडल के लिए। 16 मॉडल है, उसमें पहला मॉडल लिखा था सोलो मॉडल। विद इन दैट सोलो मॉडल दीज सब टॉपिक्स विल बी देयर। क्लियर? सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक मॉडल फर्स्ट। Basic model। Remember, since it is a growth model, so first thing is what is the indicator of growth? Growth indicator, you can say growth is indicated by growth of GDP, जिसे Y से डिनोट कर लेना। बट अगर इकॉनमी का जीडीपी डबल हो जाए और पॉपुलेशन भी डबल हो जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पर कैपिटा इनकम विल रिमेन सेम। सो व्हाट इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ? बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ इज इम्प्रूवमेंट इन द पर कैपिटा इनकम, नॉट ओनली द जीडीपी, देयर हैज टू बी इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम। सो यू कैन से इट इज अ जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा को डिनोट करना आप स्मॉल वाई से, और स्मॉल वाई का मतलब हो जाएगा कैपिटल वाई अपॉन एल। एल लेबर फोर्स के ले रहे, मतलब उसको पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट मान लो अभी सिंप्लीफाई करने के लिए। स्मॉल वाई से जीडीपी पर कैपिटा लिखना है, कैपिटल वाई से जीडीपी लिखना है। तो ग्रोथ इज इंडिकेटेड बाय टू फैक्टर्स, जीडीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा, बट आउट ऑफ दीज टू इंडिकेटर बेटर इंडिकेटर इज जीडीपी पर कैपिटा। Now given that, I will first explain the main idea. An idea is that Y, that is GDP, according to this model is a function of capital and labor,
and it is expressed as A capital to the power alpha labor to the power 1 minus alpha. मान लो अगर मैंने लिखा है, कोई नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे 2 कैपिटल टू द पावर 0.5 लेबर टू द पावर 0.5, उसका इंटरप्रिटेशन अभी करेंगे, बट मेजर फैक्टर पे ध्यान दिएगा. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आई एम सेइंग जीडीपी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. जीडीपी डिपेंड अपॉन A, GDP depend upon this capital stock, GDP depend upon labor force. So GDP is a function of labor, GDP is a function of capital and GDP is also a function of technology. टेक्नोलॉजी को A से डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे. GDP is a function of technology, it is a function of labor, it is a function of capital. So in an economy, capital, labor and technology interact and that interaction determine how much will be the GDP. तो इकोनॉमी के अंदर कैपिटल का, लेबर का और टेक्नोलॉजी का इंटरेक्शन होता है एंड देयर इंटरेक्शन डिटरमाइन द आउटपुट एंड द ग्रोथ ऑफ दैट आउटपुट ऑल्सो. तो इफ जीडीपी इज अ फंक्शन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, तो व्हाट डिटरमाइन द जीडीपी ग्रोथ रेट. अगर जीडीपी इन तीनों का फंक्शन है तो जीडीपी का ग्रोथ फंक्शन होगा टेक्निकल ग्रोथ का, पॉपुलेशन ग्रोथ का और कैपिटल अक्यूमुलेशन ग्रोथ का. तो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट होगा इट विल बी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर्स. बट ये मैंने जीडीपी के टर्म में लिखा है. मैंने कहा बेटर इंडिकेटर जीडीपी पर कैपिटा होता है. तो पर कैपिटा इंडिकेटर अगर जीडीपी का बेटर है तो उसके जीडीपी पर कैपिटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डिवाइड कर दिया लेबर फोर्स से. तो इफ़ यू डिवाइड दिस, you are writing y is a capital to the power alpha labor to the power 1 minus alpha. पर कैपिटा के लिए l से डिवाइड कर दिया तो y बाई एल को स्मॉल y लिख देंगे. और अगर आप ये राइट साइड सिंप्लीफाई करोगे तो ये नंबर ऐसा आ जाएगा k बाई एल टू द पावर अल्फा. तो स्मॉल y इज अ फंक्शन ऑफ, जैसे y बाई एल को स्मॉल y से लिख रहे हैं वैसे k बाई एल को स्मॉल के से लिख दिया. तो मैंने यहाँ जो फंक्शन लिखा है एग्रीगेट का, इसको पर वर्कर में कन्वर्ट कर दिया. ये एग्रीगेट है ओवरऑल टोटल और ये पर कैपिटा के टर्म में. ठीक है. तो जीडीपी इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, इट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर फोर्स. नाउ growth of the GDP is a function of technical growth rate, capital growth rate और labor force growth rate. जैसे आप रिलेट कर सकते हो ए को इन द सेंस, मैं 2 कंट्री का अगर फंक्शन लिख रहा हूँ, मैंने 2 कंट्री के लिए अगर प्रोडक्शन फंक्शन लिखा है, इंडिया के लिए भी लिखा और चाइना के लिए भी लिखा. तो अगर प्रोडक्शन का फंक्शन 2 कंट्री के लिए लिखते समय y इज इक्वल टू 2 कैपिटल टू द पावर 0.5 लेबर टू द पावर 0.5 और दूसरी जगह लिखा मैंने 3 कैपिटल टू द पावर 0.5 लेबर टू द पावर 0.5. मान लो एक प्रोडक्शन फंक्शन इंडिया के लिए हो गया, एक प्रोडक्शन फंक्शन चाइना के लिए हो गया. तो दोनों कंट्री में अगर सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर है तो किस कंट्री का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. मतलब के और एल की वैल्यू भी दोनों जगह सेम कर दो तो किस कंट्री का वाई ज़्यादा हो जाएगा. जहाँ पे आपने ये ग्रेटर नंबर लिख रखा है ये 3 से मल्टीप्लाइड हो गया. तो विथ सेम कैपिटल एंड लेबर इफ अ कंट्री प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट, इट मीन्स विथ सेम कैपिटल एंड लेबर वन कंट्री प्रोड्यूसेस मोर आउटपुट, इट मीन्स व्हाट, वहाँ जो कैपिटल और लेबर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है. तो प्रोडक्टिविटी भी डिटरमाइन कर रहा है ये नंबर एंड दैट प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी. विथ बेटर टेक्नोलॉजी द लेबर इज मोर प्रोडक्टिव. तो टेक्निकल ग्रोथ भी है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ भी है. तो इकॉनमी का ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रॉडर डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर. जस्ट जो कॉमन आइडिया, पहले कॉमन आइडिया को आप स्टेटमेंट में लिख लो. हाउ टू एक्सप्लेन दिस, जस्ट राइट डाउन द मेन आइडिया. सोलो मॉडल इज डिजाइंड, सोलो मॉडल इज डिजाइंड to show, Solow model is designed to show how growth in capital stock, how growth in capital stock
comma, growth in labor force, and advances in technology, interact in an economy, and how they affect total output, of goods and services of an economy, Just underline that main idea. Solow model is designed to show how growth of capital stock, growth in labor force, and advance in technology interact in an economy, and how they affect total output of goods and service of economy. So, any question on Solow model, you can write this main idea and you can start your answer with this main idea. ठीक है, तो ये जो लिखा अपने स्टेटमेंट में उसके लिए इक्वेशन ये हुआ, y is a capital to the power alpha, labor to the power 1 minus alpha, and dividing this with labor force, you write small y a small k to the power alpha. ये पर वर्कर के टर्म में और ये एग्रीगेट है. जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट y इज इक्वल टू अंडर रूट के, मतलब अल्फा की वैल्यू 0.5 ले ली, ठीक है, a की वैल्यू 1 कर दिया, सिंपल कर दो, a 1 ले लिया और अल्फा 0.5 ले लिया, तो ये अंडर रूट के हो गया k टू द पावर 0.5. तो अंडर रूट के को अगर आप इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करते हैं by writing here stock of capital and by writing here y, तो अगर stock of capital 100 है तो आउटपुट 10, 200 हुआ तो it will not double. पॉइंट ये है, कैपिटल को डबल करने पे आउटपुट डबल नहीं होगा, बिकॉज डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल है, एंड बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल यू प्लॉट प्रोडक्शन फंक्शन लाइक दिस, नॉट a straight line. Corresponding to the stock of capital, say 100, the output will be 10, but corresponding to capital stock 200, output will not be 20, it will be less than 20. So increase तो होगा, but that increase will be less. So when you have to plot the production function, you write production function in this manner, y as a function of k लिखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ में next paragraph. Solow model is based on law of diminishing return. Solow model is based on law of diminishing return to individual factor of production. Law of diminishing return to individual factor of production. Underline the law of diminishing return. Is based on law of diminishing return to individual factor of production. It means that as stock of capital increases,
It means that as stock of capital increases, after comma, output will increase, but at a decreasing rate. Output will increase but at a decreasing rate. This implies that marginal product of capital will decrease. Marginal product of capital will decrease. Marginal product of capital will decrease. Next paragraph. We can build Solo model in a series of steps. We can build Solo model in a series of steps. In the first step, we can build Solo model in a series of steps. In the first step, let us assume that labor force and technology are constant. Labor force and technology are constant. Labor force and technology are constant. So output can change. Due to change in stock of capital only. Output can change due to change in stock of capital only. Output can change due to change in stock of capital only. देखो इस लाइन का मतलब है जब प्रोडक्ट मॉडल को एक्सप्लेन करना है तो ये अलग अलग स्टेप में एक्सप्लेन किया जाएगा. जीडीपी टेक्नोलॉजी का फंक्शन है, कैपिटल का फंक्शन है, लेबर फोर्स का फंक्शन है. यहाँ से देख लीजिए. बट पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखा है, लेबर फोर्स को भी कांस्टेंट कर दिया. तो अगर टेक्नोलॉजी और लेबर चेंज नहीं हो रहा है तो ये वाई कब चेंज होगा, जब कैपिटल चेंज होगा. सो कंप्लीट फोकस विल बी ऑन capital accumulation. How economy accumulates more capital, what determine the growth of that capital stock. So we have to focus there. Second step में क्या करेंगे, कैपिटल के साथ साथ लेबर भी वेरिएबल हो जाएगा, और थर्ड में टेक्नोलॉजी, मतलब तीनों फैक्टर वेरिएबल कर लेंगे. फाइनली एक एक करके करने से होता है कि आप एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई करोगे कि इफ ओनली कैपिटल विल चेंज देन व्हाट इज द इम्पैक्ट, इफ लेबर फोर्स ऑल्सो चेंजेस देन व्हाट इज द इम्पैक्ट, if technology also changes then what will be the impact. तो सबका individual impact analyze होगा. So we are focusing first of all on what, capital only. Next paragraph में Solo model is based on assumption of constant returns to scale. Is based on assumption of constant returns to scale. Underline that, constant returns to scale, which means that when labor and capital both will increase, in a given proportion, then output will increase in the same proportion. Output will increase in the same proportion. CRS का मतलब होता है अगर कैपिटल और लेबर दोनों को हमने डबल कर लिया, दोनों अगर डबल हो गया तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा. तो अगर इफ़ यू राइट प्रोडक्शन एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर,
तो अगर ये कैपिटल और लेबर डबल कर ले, 10% बढ़ा ले, 20% बढ़ा ले, तो आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ जाएगा. सो इट मीन्स इफ यू चेंज कैपिटल बाय सपोज t टाइम्स, labor also by t times, then output will also rise by t time. If I consider t as 1 by L, so how you can write this function? Y by L, a function of k by L comma 1. Y by L को क्या लिखना है? किसका फंक्शन हो गया ये? स्मॉल के का फंक्शन हो गया. वन कांस्टेंट नंबर था, उसको इग्नोर कर दिया आपने. प्रोडक्शन का फंक्शन एक्चुअल में y इज अ फंक्शन ऑफ k. y इज अ फंक्शन ऑफ k. y इज अ फंक्शन ऑफ k. और इस फंक्शन ऑफ k को ही बेसिकली आपने जो प्रीवियस डायग्राम ड्रॉ कर रखा था उसके अंदर इसको आपने प्लॉट कर रखा है. बट एक पॉइंट आप नोट करोगे, मैंने स्टार्ट में लिखा था, बोला डिमिनिशिंग रिटर्न टू इंडिविजुअल फैक्टर, और यहाँ लिख रहे हैं कांस्टेंट रिटर्न. फ़र्क समझ में आ रहा है? रिटर्न्स टू स्केल वर्ड जब यूज़ करते हैं तो कैपिटल लेबर दोनों चेंज करेंगे, और जब डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल कह रहा हो तो सिर्फ कैपिटल चेंज कर रहे हैं, लेबर चेंज नहीं कर रहे. दोनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. जब आप कैपिटल लेबर दोनों डबल करोगे तो आउटपुट डबल होगा, तो सिर्फ कैपिटल डबल करने पे आउटपुट डबल नहीं होगा. तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर है एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है. ठीक है. अभी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए जो टूल होते हैं ना, वो आप टूल समझ रहे हो कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस. दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल. To explain a model we need certain tool, and those tools are provided in the form of production function. Clear यहाँ तक? Now second और next पैराग्राफ में remember y का एक दूसरा एंगल है जिसको हम डिमांड साइड से कहते हैं अब, because model is basically relating to the economy. So output is also equal to aggregate demand. मैक्रो में आप ये भी लिखते हो, y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर भी सही है, और y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है. अभी आप बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं. वी आर इग्नोरिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग क्लोज इकोनॉमी. We are ignoring government expenditure, that means economy consists of only two sector, एक हाउस होल्ड और एक फार्म है. ये हो गया y. दोनों साइड को लेबर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने सप्लाई साइड को कर रखा है, इसलिए यहाँ भी करना है. बेटर इंडिकेटर क्या है ग्रोथ का? तो पर कैपिटा में सारी चीज़ें कन्वर्ट करनी है. तो अब जरा ये बताओ, मैंने y बाई एल को क्या बोला है? स्मॉल y से डिनोट किया, बट इसको पढ़ना क्या है? ये जीडीपी पर कैपिटा है. इसको आउटपुट पर कैपिटा भी कह सकते हो, आउटपुट पर वर्कर भी कह सकते हो. स्मॉल के क्या है? कैपिटल पर वर्कर भी है, कैपिटल पर कैपिटा भी है. तो जब आप यहाँ पे c बाई एल लिखोगे तो क्या पढ़ेंगे इसको? कंजम्पशन पर कैपिटा, इसको इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा. तो जो y स्मॉल y है, इट इज इक्वल टू कंजम्पशन पर वर्कर प्लस इन्वेस्टमेंट पर वर्कर. एवरीथिंग यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ द पर कैपिटा. तो दिस आउटपुट इज इक्वल टू, आउटपुट पर वर्कर इज इक्वल टू कंजम्पशन पर वर्कर प्लस इन्वेस्टमेंट पर वर्कर. ठीक है. अब एक दूसरा एंगल समझिए यहाँ पे. जो भी y है, स्मॉल y, ये पर कैपिटा इनकम है.
ठीक है, यहाँ से लिखना पहले। वाई पर कैपिटा इनकम है, इनकम विल बी एलोकेटेड बाय हाउस होल्ड आइदर ऑन सेविंग और इट कैन बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो इनकम का एक फ्रैक्शन हम सेव करते हैं, एक फ्रैक्शन कंज्यूम करते हैं। तो मान लेते हैं कि सेविंग का जो फ्रैक्शन, इनकम का जो फ्रैक्शन सेव कर रहे हैं वो स्मॉल एस है। सपोज स्मॉल एस इज 0.2 मतलब 20%। तो सेविंग का अमाउंट क्या होगा, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इनकम को। तो सेविंग का अमाउंट जब मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, व्हाट इज सेविंग अमाउंट, स्मॉल एस इंटू वाई। रिमेंबर ये वाई इनकम है, सपोज ये इनकम आपने लिख दिया यहाँ पे 100, तो ये 100 ही तो एलोकेट होना है। 20% सेविंग पे खर्च किया तो 0.2 इंटू 100, 20 सेविंग हो गया और रिमेनिंग कंजम्पशन हो जाएगा। तो कंजम्पशन का अमाउंट क्या लिखोगे, 1 माइनस एस इंटू वाई। ठीक है ये पॉइंट। अ पार्ट ऑफ इनकम इज स्पेंट, अ पार्ट इज सेव्ड। So let us suppose that saving rate is small s. So saving amount is small s into y and consumption is 1 minus s into y. तो वहाँ यहाँ जो c लिख रहा है ना, वो c एक्चुअल में कौन सी वैल्यू हो गई, ये c हो गया 1 माइनस एस इंटू वाई। तो अब मैंने ये वैल्यू यहाँ लिख दिया, स्मॉल c की जगह लिख दिया 1 माइनस एस इंटू वाई प्लस आई। ध्यान से स्टेप देख लिए, फिर कॉपी कर लीजिएगा। ये y माइनस स्मॉल एस वाई प्लस आई हो गया, y इनफैक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो गया तो टर्म रह गया स्मॉल एस वाई इज इक्वल टू आई। स्मॉल एस इंटू वाई इज नथिंग बट सेविंग। स्मॉल एस इज सेविंग रेट, स्मॉल एस इंटू वाई इज सेविंग अमाउंट। सो सेविंग इज इक्वल टू टू सेक्टर मॉडल के लिए सही होना है इक्विलिब्रियम पॉइंट, सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो वेन एवर यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर इन्वेस्टमेंट, यू कैन ड्रॉ सेविंग लाइन, सेविंग की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और सेविंग की लाइन अगर इस फॉर्मेट में ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब हो गया, अभी जो लाइन ड्रॉ की गई थी वो लाइन थी फंक्शन y की, ये था y। मुझे ड्रॉ किसके लिए करना है, s इंटू वाई। तो s इंटू वाई की वैल्यू तो फिर इसके नीचे होगी, सेविंग इनकम का एक पार्ट है। अगर ये वाले वैल्यू 100 जा रहा है तो ये वाली वैल्यू फिर 20 वाली लाइन होगी। तो किसी भी गिवन स्टॉक ऑफ कैपिटल पे अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द इनकम, तो इनकम आप बताओगे फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन, कि दिस इज योर इनकम। इफ आई आस्क हाउ मच इज सेविंग, सेविंग विल बी डिटरमाइंड बाय दिस वैल्यू। सो व्हाट डिटरमाइन दिस गैप, इनकम और सेविंग के बीच का गैप, सेविंग ही इन्वेस्टमेंट है, इनकम और सेविंग के बीच का गैप कंजम्पशन है। तो ये जो गैप आ रहा है ये एक्चुअल में कंजम्पशन पर वर्क करे। ठीक है, फर्स्ट लाइन प्रोडक्शन फंक्शन की है, दूसरी लाइन सेविंग की कह लो, इन्वेस्टमेंट की कह लो, और जो गैप है वो कंजम्पशन है। ठीक है, इसको पहले रफ में आप कॉपी कर लीजिए। And below that draw this. Remember y is nothing but a function of k, तो आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल एस फंक्शन ऑफ के।
Red and first. In the basic Solow model, demand for goods comes from, demand for goods comes from consumption and investment. Demand for goods comes from consumption and investment. मतलब y equal to AD है, C plus I. Demand for goods comes from consumption and investment. It means output per worker is divided between, consumption per worker and investment per worker. Consumption per worker and investment per worker. So the model assumes that a constant fraction of income is saved. 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 Bracket में small s. And the remaining fraction of income is spent. Remaining fraction of income is spent. Remaining fraction of income is spent. ठीक है, यहाँ तक आप कह लो इसके टूल हो गए जो मॉडल को समझने के लिए मुझे चाहिए था. अब इन सबको यूज़ करते हुए जो फर्स्ट हेडिंग लिख रखी थी आपने स्टेडी स्टेट डिटरमाइन करना है. सो वी कैन डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट. Steady state level of capital. Steady state level of capital. ठीक है, पहले यहाँ समझ लीजिएगा, उसके बाद ड्रॉ करना कुछ. रिमेंबर, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर विल बी अ स्टॉक ऑफ कैपिटल. ये स्मॉल के लिखा है मैंने. मान लिया ये 2000 आज की डेट का स्टॉक ऑफ कैपिटल ले लिया, 2023 का एक स्टॉक ऑफ कैपिटल है. तो स्मॉल के इज एक्चुअली कैपिटल के अपॉन एल होता है. तो फिर ये स्टॉक भी 2023 का है और लेबर फोर्स भी 2023 का लिया आपने. तो एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव अ स्टॉक ऑफ कैपिटल. वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि व्हाट विल बी द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन 2024. बट ये पहला स्टेप है. पहले स्टेप में हमने कुछ असम्पशन बनाए हैं. असम्पशन क्या लिया है? लेबर फोर्स चेंज नहीं करना. तो लेबर फोर्स चेंज नहीं करना मतलब ये एल चेंज नहीं. तो अगर एल चेंज नहीं होगा तो स्मॉल के तभी चेंज होगा जब ये कैपिटल के चेंज होगा. ठीक है, और कैपिटल के स्टॉक ऑफ कैपिटल है, इसके चेंज होने के सर्टेन रीज़न होंगे. इकॉनमी का जो भी स्टॉक ऑफ कैपिटल आज की डेट में अवेलेबल है, स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब है प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट. अगर हम कोई भी नया प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट बाय नहीं करते, सेटअप नहीं करते हैं, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो हमेशा नहीं रहेगा. प्रोडक्शन प्रोसेस में वो डेप्रिसिएट हो जाएगा. तो डेप्रिसिएशन से उसकी वैल्यू, तो इट विल फॉल ड्यू टू डेप्रिसिएशन. ये डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. मान लेते हैं 10% डेप्रिसिएट कर रहा है, तो 10% को आपने डेल्टा यानी डेप्रिसिएशन रेट लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टॉक ऑफ कैपिटल से, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा. इंक्रीज कब होगा? व्हेन यू बाय मोर मशीनरी, बट परचेज ऑफ मोर मशीनरी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. सो इट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, and investment is equal to saving, and saving is small s into y. ठीक है, तो change in the stock of capital will be equal to what? ओवरऑल जो चेंज आएगा वो किससे डिटरमाइन होगा? ग्रोथ हो गया सेविंग से, डिक्रीज होगा डेप्रिसिएशन से. तो यहाँ क्या लिख देंगे? इन्वेस्टमेंट
माइनस डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट की जगह क्या लिख दो, स्मॉल एस वाई, और डेप्रिसिएशन की जगह डेल्टा के। वाई किसका फंक्शन है, के का, तो स्मॉल एस फंक्शन ऑफ के माइनस डेल्टा के इज इक्वल टू चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये एक्चुअल में हमारा इक्वेशन हो गया। नाउ अगर डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो और इन्वेस्टमेंट कम हो तो स्टॉक डेप्रिसिएशन से घटता है। तो इफ डेप्रिसिएशन इज मोर देन स्टॉक विल, इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन, इफ बोथ आर इक्वल देन stock will neither increase nor it will decrease, and that is called as steady state. So what is steady state? Steady state is that state where stock of capital will not change, which requires that investment must be equal to depreciation. Investment must be equal to depreciation. तो आप इसका मतलब हो गया कि if you have to write any equation for the steady state, so you simply say that at steady state, स्टेडी स्टेट का कंसेप्ट यही है। स्टेडी स्टेट का मतलब है स्टेडी स्टेट पे चेंज इन कैपिटल स्टॉक डेल्टा के विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो होना है। और डेल्टा के का मतलब हो गया स्मॉल एस फंक्शन ऑफ के माइनस डेल्टा के, ये इक्वेट कर दोगे आप ज़ीरो से। तो ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा, दैट स्टॉक ऑफ कैपिटल विल बी कॉल्ड एज, और स्टेडी स्टेट को डिनोट करने के लिए हमेशा स्टार लगा देना वहाँ। तो के स्टार जब लिखेंगे इसका मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो। अब इस स्टेडी स्टेट को अगर मैं जस्ट वेट फॉर, स्टेडी स्टेट को अगर मैं ग्राफिकली शो करता हूँ तो उसका मतलब मुझे कौन सी लाइन बनानी है, एक सेविंग की लाइन मतलब इन्वेस्टमेंट और एक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये लाइन हो गई इनफैक्ट डेल्टा इंटू के, और दूसरी जो लाइन बनाएंगे वो सेविंग या इन्वेस्टमेंट की लाइन कह लो, एस फंक्शन ऑफ के। जहाँ पे दोनों इक्वेट हो रहे हैं ये नंबर स्टेडी स्टेट नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेविंग और डेप्रिसिएशन दोनों बराबर हो गए। इस स्टेडी स्टेट का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? अगर स्टॉक ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होगा तो क्या आउटकम होगा? मान ले स्टॉक ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, so what will happen? इस स्टॉक ऑफ कैपिटल पे you will find that investment is less, depreciation is, तो stock will decrease. Decrease means it is moving towards a steady state. If it is less than, at that stock depreciation is less, investment is, so stock will increase. तो स्टॉक कब तक चेंज होता रहेगा? इसलिए उसको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, वो इकॉनमी का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। बट अगर मैं कह रहा हूँ स्टेडी स्टेट पे ग्रोथ क्या है, व्हाट इज द ग्रोथ? स्टेडी का मतलब हो गया स्मॉल के की जो वैल्यू होगी 2023 की, वही वैल्यू रह जाएगी 2024 में, वही वैल्यू रह जाएगी 2025 में, एंड सो ऑन। अब अगर के चेंज नहीं हो रहा है तो क्या वाई चेंज होगा? वाई तो के का फंक्शन है, तो फिर y की वैल्यू जो 2023 में है वही वैल्यू 2024 में रह गया और नेक्स्ट ईयर भी रह जाएगा। सो हाउ मच इज ग्रोथ देन? कोई ग्रोथ नहीं है, स्टॉक तो वही रह गया। स्टेडी स्टेट पे कोई ग्रोथ नहीं होता है, स्टेडी स्टेट पे कोई ग्रोथ नहीं होता है। बट जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हो स्टेडी स्टेट पे कोई ग्रोथ नहीं होता है, रिमेंबर हमने दो असम्पशन बनाए हुए हैं अभी तक। ये पहला स्टेप है हमारा, लेबर फोर्स चेंज नहीं किया और टेक्नोलॉजी भी चेंज। तो जब तक आप लेबर फोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करोगे स्टेडी स्टेट पे कोई ग्रोथ नहीं होगा। मतलब ग्रोथ किसकी वजह से होता है? फिर टेक्नोलॉजी की वजह से होता है और लेबर फोर्स ग्रोथ की वजह से होता है। वो फैक्टर होंगे जो ग्रोथ को डिटरमाइन करेंगे। उस कंटेक्स्ट में बेसिकली एक्सप्लेन करना है। एक पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हो, ये स्टेडी स्टेट कब चेंज हो जाएगा, ये नंबर कब चेंज हो सकता है? नंबर चेंज हो सकता है जब आप इस सेविंग का रेट चेंज कर लो, तो ये लाइन शिफ्ट हो सकते हैं ना ऊपर। फिर तो एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लिया जो सेविंग का रेट है आज की डेट में वो 30% है इन 2023,
तो 23 के बेसिस पे आपने लाइन बना ली। इफ सेविंग रेट गोज अप देन व्हाट विल हैपन, सेविंग रेट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी तो फिर के की वैल्यू बढ़ेगी, बट क्या फॉर एवर बढ़ेगी या टेम्पररी बढ़ेगी, टेम्पररी बढ़ेगी, फिर से नया स्टेडी स्टेट आ जाएगा। तो मान लिया सेविंग रेट इस 23 में बढ़ाया आपने, स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होकर के एक नया नंबर आ जाएगा, टेम्पररी इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाएगा, बट वंस यू रीच द न्यू स्टेडी स्टेट देन ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो फर्दर ग्रोथ। इसलिए कहते हैं सेविंग रेट से टेम्पररी ग्रोथ होता है, परमानेंट ग्रोथ नहीं होगा। सेविंग रेट से सिर्फ टेम्पररी ग्रोथ होगा, देयर विल बी नो परमानेंट ग्रोथ इन दैट। तो ये पार्ट बेसिकली स्टेडी स्टेट के मीनिंग में आपको एक्सप्लेन करना है, बट मॉडल जो पेपर के अंदर आप एंटिसिपेट करोगे क्वेश्चन, उसमें ये एलिमेंट्री स्टेप नहीं आता, ये पहला स्टेप है हमारा, बट पहला स्टेप कंप्लीट, पहला स्टेप अगर आपको क्लियर होगा ओनली देन यू कैन मॉडिफाई द चेंज कि व्हाट विल हैपन व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ विल चेंज, व्हाट विल हैपन व्हेन टेक्नोलॉजी विल चेंज। इसको दूसरे एंगल से भी आप समझ सकते हो, जैसे मैंने एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सपोज आई एम टेकिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ किया फॉर इंडियन इकोनॉमी, दूसरा ड्रॉ कर लिया फॉर, दोनों जगह सारी चीज़ें आप सेम कर लो, डेप्रिसिएशन रेट सेम, तो सेम लाइन बन गई। बट मैं कह रहा हूँ सेविंग रेट इंडिया में 20% है, एस की एक वैल्यू ली 20%, चाइना में वो 30% है, एस की वैल्यू यहाँ पे अलग है, बाकी सब फंक्शन वगैरह सब सेम है। हेयर सेविंग रेट इज़ 20%, हेयर सेविंग रेट इज़ 30%। ये इंडिया का स्टेडी स्टेट हो गया, ये चाइना का स्टेडी स्टेट हो गया। इफ़ आई आस्क हाउ मच इज़ ग्रोथ इन इंडिया, 0, स्टेडी स्टेट ये है। हाउ मच इज़ ग्रोथ इन चाइना, वो भी 0 है, वहाँ भी कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ भी कोई ग्रोथ नहीं है। क्या दोनों कंट्री का जीडीपी भी सेम है, वो सेम नहीं होगा, बिकॉज जहाँ सेविंग रेट लो होगा वहाँ कैपिटल कम होगा, वहाँ आउटपुट कम होगा, और जहाँ सेविंग रेट ज़्यादा है वहाँ कैपिटल ज़्यादा होगा और आउटपुट भी ज़्यादा होगा। तो मैं अगर दो लाइन यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ कर लूँ, इफ़ आई राइट फॉर द आउटपुट, तो एक जगह आउटपुट, यहाँ भी आउटपुट स्टडी है, ये भी स्टडी है, बट दोनों के लेवल में फ़र्क है। तो लोअर लेवल किसके लिए होना है, लोअर लेवल हो गया जहाँ पे सेविंग का रेट कम होगा, और हायर लेवल होगा जहाँ सेविंग का रेट ज़्यादा होना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ लेवल इफेक्ट। सो व्हाट कॉज अ लेवल इफेक्ट, सेविंग रेट, सेविंग रेट से लेवल इफेक्ट होता है। डेप्रिसिएशन कॉन्स्टेंट नंबर लेते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन होता है। डेप्रिसिएशन अलग अलग कैपिटल गुड्स होते हैं, वो अलग अलग रेट से डेप्रिसिएट होंगे। जिस रेट से कार डेप्रिसिएट होगा उसी रेट से बिल्डिंग डेप्रिसिएट नहीं होगी, उसी रेट से ट्रक डेप्रिसिएट नहीं होगा। बट वी आर स्टडिंग मैक्रो, तो जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए डेप्रिसिएशन के रेट को क्या कर लेते हैं, एक फिक्स कॉन्स्टेंट रेट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम इसमें? यहाँ तक कर लिया था फर्स्ट, ये पेज हो गया, ठीक है। इसको बस कॉपी कर लेना। आज की क्लास थोड़ी डेफर्ड हो गई थी, लेट हो गई है, तो मैं यहीं से आपको कंटिन्यू रखूँगा कल, बट कल फिर शेड्यूल टाइम पे अपनी क्लास होगी, मतलब जो 11:30 वाला टाइम है।
ठीक है, स्टेडी स्टेट के डिस्क्रिप्शन से बिगिन करेंगे, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, सिग्निफिकेंस ऑफ इट, हाउ टू कैलकुलेट इट, ऑल्दो कैलकुलेशन वाला नहीं होता क्वेश्चन, बट स्टिल वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट इट. And the remaining part like effect of population growth rate, effect of technical progress growth rate, golden rule, तो those will be the major topic जो कल की क्लास में होगा, उसमें major topic आ जाएंगे सारे जो क्वेश्चन के लिए relevant होगा. In this class you have just learned the tool to understand the Solow model. तो जो model है it is designed basically to highlight how capital, labor and technology interact and how that interaction determine the आउटपुट, उनके इंटरेक्शन से इकोनॉमिक आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है. कंजम्पशन भी स्टडी होगा, स्टडी सेट पे ऑल वेरिएबल विल बी स्टडी, कंजम्पशन स्टडी, इन्वेस्टमेंट स्टडी, आउटपुट स्टडी, ऑल नंबर्स आर स्टडी, मतलब कांस्टेंट रह जाएगा. इट वोंट बी जीरो, चेंज जीरो है बट दैट नंबर इज नॉट जीरो, दैट नंबर इज अ कांस्टेंट नंबर. Then any confusion up to this? रेफरेंस के लिए यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर वन कंट्री, तो वन कंट्री में हमने रिजर्विंग का रेट अलग अलग लेकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड यू कैन कंपेयर बाय ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर टू कंट्री ऑल्सो. दिस कैन बी यूज्ड एज वेल एज फॉर द सिंगल कंट्री. So you have drawn basically just a basic part of a Solow model. This model content इसके अंदर ज़्यादा, it will be taking around 2 to 3 lecture to complete the Solow model. But justifiable है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई सारे. Source for this growth and development briefly मैं explain कर देता हूँ जब तक आप ये draw करो. One will be your study material which is compilation of various sources like रोमर मॉडल के लिए जोन्स के चैप्टर 4 और 5 हैं. ह्यूमन कैपिटल वाले पार्ट के लिए देवराज रे की बुक होगी. लुइस मॉडल, हैरिस-स्ट्रैडर मॉडल के लिए भी देवराज रे की बुक है. बट मेजॉरिटी ऑफ जो मॉडल होंगे यू कैन रेफर इट फ्रॉम द एम एल झिंगन, तो यू कैन कीप दैट बुक ऑल्सो विथ यू, वो यूजफुल है. सो वन इम्पॉर्टेंट सोर्स विल बी एम एल झिंगन, इकॉनमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बुक होती है. उसमें मोस्ट ऑफ द मॉडल आपको मिल जाएंगे. कुछ ओल्ड मॉडल भी अगर आप रेफ़र कर रहे हो, लाइक इकॉनमिक सर्विस में बहुत सारे थॉट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा. दिस बुक प्लस जो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से मिला है. स्टडी मटेरियल इज बेसिकली कंपाइलेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज. वो कंपाइलेशन है डिफरेंट सोर्स का. देवराज ए, जोन्स प्लस मैनक्यू, जैसे सोलो मॉडल जो यहाँ रेफ़र कर रहे हैं, इट इज़ चैप्टर 7 एंड 8 मैनक्यू. काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है और आपकी जो ज़रूरत के क्वेश्चन जितने बनते हैं वो सारे वहाँ एक्सप्लेन किए गए. बट मल्टीपल सोर्सेज विल बी देयर. क्लियर? तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल. आज के लिए यहीं तक.